Praise the Lord. Oh, give thanks to the Lord, for he is good. For his mercy and loving kindness endure forever. Who can put into words the mighty deeds of the Lord, or who can proclaim all his praise? Blessed are those who observe justice, who practice righteousness at all times. Remember me, O Lord, when you favor your people. Visit me with your salvation, that I may see the prosperity of your chosen ones, that I may rejoice in the gladness of your nation, that I may glory with your inheritance. यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य है वह जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruit you will recognize them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and driven out demons in your name, and done many miracles in your name? And then I will declare to them publicly, I never knew you. Depart from me, you who act wickedly. अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुतों से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हे जीवितानुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे निकट आते हैं पिता। आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमें संभालने के लिए तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं पिता। हमें ना गिरने देने के लिए और हमें छोड़ने और त्यागने ना करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जैसे तेरा वचन कहता है कि ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हमें ना तजने के लिए और हमें ना त्यागने के लिए, हमें हमारी अवस्था में ना छोड़ने के लिए, पर हमें हमारे अवस्था से निकाल एक सही जगह में यीशु के साथ प्लेस करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह वचन कहता है पिता कि बहुत से लोग हैं, और जिस तरह वचन कहता है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, वैसे ही बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। और अंत में वचन कहता है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। The most important and the fruitful life would be when we follow Christ. When we are living a Christian life, when we are following Jesus Christ, then only we would be able to bear good fruits in our life. The fruits which Bible is talking about is spiritual fruit, which we can get or we can read in Galatians. And when we read about spiritual fruits, spiritual fruits can come or we can bear when we are following Christ continuously. When we know the meaning and the depth of this meaning, that we are Christian and every single day we are following Jesus Christ in our lives. We are waiting and we are
doing all His wills as He taught us from the Bible, that He always He asked for God's will. He was not doing what His will desire, what He was desiring to preach, but He was doing everything according to the God's will. And for that, He always took out the time from His personal routine, and all the entire day He took out the personal time with God. He sat with God and asked His will, and whole day He was walking with the Holy Spirit, and He was doing everything according to God's will. प्रतिदिन जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर, जिस तरह यीशु मसीह जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो अपनी सेवकाई में किस रीति से पूरे दिन में वो अपना प्राथमिक समय और अपना व्यक्तिगत समय निकाल कर परमेश्वर के साथ बैठते थे, और पूरे दिन वो पवित्र आत्मा की चलाई चलते थे कि वो जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना क्या है, और वो परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते थे। हम जब उस भाग का और यीशु मसीह का पूरी रीति से अनुसरण कर जब अपने जीवन में भी प्राथमिकता के साथ व्यक्तिगत संबंध निकालते हैं परमेश्वर के साथ, जब हम उस समय को निकालते हैं जो पर्सनल रूटीन है उससे अलग, जब हम व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ बैठते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता दिया, हम जब परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, पवित्र आत्मा के साथ आगे चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को सबसे ऊपर रखते हैं, हम उस चाल चलन और उस भीतरी मनुष्यत्व में बदलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में हमें बदलता है। और हम अंश के जब उसके प्रति स्वरूप बदलते हैं, हम उस स्पिरिचुअल फ्रूट से, उस आत्मिक फल से तृप्त होते हैं और भरते हैं, जो हमें परमेश्वर के साथ उसके अनुसरण में बनाता है, जो हम पढ़ते हैं गलातियों में 5 में। और हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जब हम आत्मिक फलों में बढ़ते हैं, हम आत्मिक फलों में खुद की वृत्ति या अपने खुद की योजना या चाहत से नहीं बढ़ सकते हैं, पर वो ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइस्ट है। जब हम यीशु के रूपांतरण में, यीशु के साथ, यीशु के अनुसरण में बढ़ते हैं, उसकी संगति में हम भीतरी मनुष्यत्व में यीशु के साथ उसके अनुसरण में बदलते चले जाते हैं, तब ये स्वभाव अपने आप हमारे अंदर स्वाभाविक रीति से आता है, जो आत्मिक फल के बारे में बाइबल हमें बतलाती है। खुद के बनाए योजना से हम परमेश्वर को महिमा कभी नहीं दे सकते हैं। Whenever we try to plan to give praise to God according to our desire or plan, that's not gonna happen, and that is not what Bible taught us. Bible always taught us about what Jesus asked God's will, and He was doing God's will, and He taught us to do it as well. And that's why He taught us prayer to do, that let your will be done on heaven, let it be done on earth as well. Is the entire prayer what God has taught us. Let your will be done on earth as it is in heaven. And परमेश्वर जब इस वचन के साथ आप हमें ब्लेस करते हैं, हम खुद की योजना से और अपनी चाहत से परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं। When we try to please God by our fulfilling our own desires, we are not praising God, we are praising ourselves. We are pleasing ourselves. And for what God is saying, if we are thinking that according to praising God lots of much, according to Bible, what we learned today or what we studied,